pleasure that हमारे बीच वैष्णवी आई है. She's All India 49th IPCC November 15. Please come. First of all, before I congratulate, I've already congratulated her. Before I hand over the mic to her, मैं 2-3 बात आपको बताना चाहता हूँ. सबका एक सपना होता है कि मेरा एक रैंक आए. मेहनत करने के बाद एक सपना होता है कि I get a rank in professional exam. And मेहनत अगर आप करो और तकदीर भी अगर साथ दे तो आप उस सपने को साकार कर सकते हैं. ये एक सबूत है कि आपका क्या सीपीटी में रैंक आया है? नो. क्या कॉलेज में आप फर्स्ट आई हैं? नो. तो यूजुअली स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं मेरा सीएस फाउंडेशन में रैंक नहीं आया है, मेरा सीपीटी में रैंक नहीं आया है, क्या मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव में, क्या मेरा आईपीसीसी में रैंक आ सकता है? क्योंकि फ्रेंड्स से नॉर्मली यही ट्रेंड सुनने को मिलता है कि अगर आप अपने स्कूल में फर्स्ट सेकंड आए हो या अगर आप सीपीटी में रैंक होल्डर रहे हो तो ही आपका आईपीसीसी में आएगा. बट इन्होंने अपने मेहनत से इस चीज को बदल डाला. अ गुड स्टूडेंट. सेंट जेवियर्स इवनिंग में है आप? क्या बीबीए कर रही हैं या बीकॉम? बीकॉम. सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर? सेकंड ईयर. So this student who did not have the previous rank background, जो आप लोग बैठे हुए यहाँ पर, आप समझ रहे हैं इस बात को? yes or no जोर से बोलिए. तो आप लोग जैसे जो लोग हैं, जो अब आप भी अगर मेहनत करें तो इस दीदी की तरह, मतलब आप लोग की दीदी मेरी दीदी की तरह, आप भी रैंक ला सकते हैं. तो लेट अस हियर समथिंग फ्रॉम हर. ओके, एक्सक्लूडिंग मेरी तारीफ को छोड़कर आप बाकी जब सब बात यहां पर बोलिए कि ओवरऑल एक स्टूडेंट को बाकी 7 पेपर्स बैलेंस करना चाहिए या क्या करना चाहिए, या सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस करना चाहिए. व्हाट आर योर व्यूज? यू आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट टू टॉक अबाउट इट. प्लीज टेक द माइक. टुवर्ड्स हर. 50% layout. First of all, I like to say that self-determination and hard work is the key to success. Okay, सब ये बोलते हैं सीए में कि luck matter करता है, luck matter करता है. Okay, luck is a factor, but hard work का major contribution होता है. And results, we all know results अच्छे नहीं होते, up down होते रहते हैं. But we should not be demotivated. मतलब हमेशा try करते रहना चाहिए. Okay, ऐसा नहीं है कि आप लोग का नहीं क्लियर हुआ या किसी का नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छे नहीं है. They are also as good as the rank holders. It's just about the luck. मेरा भी okay, I did hard work, but I accept that there were many more people who were deserving. Means they did better than me. It was just a matter of luck कि मेरा आ गया AIR 49. And no, it's not a matter of luck. You are being very modest. And for the preparations, I would like to suggest don't surround yourself with so many books of a particular subject. Study from one particular book and try to understand more and more. And means don't mug up. And like people have a misconception that theory subjects are boring, but it's not. The more you try to understand it, the more your interest will develop in it. And if you'll understand, your writing skills will also enhance. And पहले हम लोग जो that's it से पढ़ते थे, अब तो वो और भी advanced हो गया. Means lots of examples are there, the questions of practice manuals are there. So you should. I'm sorry कि आप लोग के समय बुक थोड़ी पतली थी. Now the book has actually been expanded. More practice manual questions have been incorporated. So she is very jealous कि हमारे टर्म में मतलब book was not इतना ज़्यादा मोटा नहीं था. Of course we have made it more comprehensive. So my apologies for that. So it's okay, I'll take this book also from you. And the aim should not be, your aim should not be that you want a degree, You should study for acquiring knowledge. अगर आपके पास degree है but knowledge नहीं है, that it is worthless. So, and please attend the classes regularly. I myself attended all the classes, almost all the classes. And if you miss it, please take. And इनको dialogues भी याद रहता था, मतलब because it's very important theory paper में अगर आप dialogues लिखें तो आपको वो कोरिलेट कर पाते हैं प्रोविजन को. डायलॉग्स डजंट मीन दैट आप एग्जाम में डायलॉग्स लिखेंगे. इन एग्जाम यू हैव टू राइट द प्रैक्टिस मैनुअल का लैंग्वेज, बेयर एक्ट के लीगल प्रोविजंस. बट जो बच्चे रेगुलर आते हैं, एंड जब इन्होंने कल अपना एक नेम भेजा, मैं बोला आप चेहरा भेजिए तब मुझे याद आएगा. तब आई कुड रिकॉल ये फर्स्ट सेकंड रो में इन लोग सीट कब्जा करके बैठती थी 5 महीना. मतलब कि इस सीट पर अगर कोई और बैठ गया तो ये झांसी की रानी बन जाएगी. तो दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रिक्टली मोटिवेटिंग कि जो आप हंसी मजाक भी समझते हैं, कई बच्चे आते नहीं हैं कि आज इजी क्लास है आज नहीं जाएंगे, या आज हंसी मजाक हो रहा आज नहीं जाएंगे, या आप चलो घर में पढ़ लेते हैं. बट इट्स माई रिक्वेस्ट, मेरा यही स्वार्थ है कि आई वॉन्ट कि और अच्छा हो आपका रिजल्ट. आप बीच में आना अगर बंद कर देंगे कि अब तो हंसी मजाक हो रहा है नहीं जाऊंगा. जैसे आईपीसीसी में एथिक्स एंड कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली अ वेरी लाइट पेपर. क्या आप वो क्लासेस करती थी या छोड़ देती थी?
श्योर, ये अभी मेरे सामने गुड इंप्रेशन पक्का? पक्का सर, पक्का IT बिकॉज यूजुअली पीपल हैव अ टेंडेंसी दैट सारा क्लासेस अटेंड नहीं करना है, मैं तो अब बाकी अपने आप ही कर लूंगा कुछ क्लासेस जाकर, आई विल अटेंड फ्यू क्लासेस, बाकी तो हंसी मजाक है. बट मेरा यही स्वार्थ है कि अगर मुझे आपसे फीस मिला है तो वाई नॉट यू आर अटेंडिंग ऑल द क्लासेस. किसी 5-6 फ्रेंड के बोलने पर आज हंसी मजाक वाला क्लास, आज नहीं जाएंगे. अरे कब वो हंसी मजाक मजाक बन जाता है, वी नेवर गेट टू नो. ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. प्लीज सिट फॉर 2 minutes. अब हमारे बीच एक और एक स्टूडेंट जस्ट ही हैज एंटर्ड, आपके सामने अभी अभी आया है. इसको प्यार से हम लोग डमरू बोलते थे. स्टेज पर आइए. अरे बैग उतारो, स्कूल थोड़ी है. अरे अपने प्रणाम यहाँ पे करना जरूरी थोड़ी था, इतने बूढ़े हो गए. डमरू हैज जस्ट एंटर्ड एंड मैंने अपने May 16 के बैच में भी कई बार बोला है डमरू के बारे में. मुझे इसका असली नाम आज तक नहीं पता क्या है. पंकज चौधरी. इनके बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ. रैंक होल्डर नहीं है ना तुम? मेरी नजर में ये रैंक होल्डर है. क्योंकि रैंक होल्डर क्या होता है, इसकी परिभाषा आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट नो. सिर्फ रैंक आ जाना ही नहीं होता, मेरी नजर में तो वही है. रैंक आया, आप सचमुच में रैंक होल्डर है. जैसे होता है ना फिजिकल एंड वर्चुअल रूम, क्लासरूम, ये एक वर्चुअल रैंक होल्डर है. एक एवरेज स्टूडेंट, हम तुमको एवरेज बोल रहे हैं, तुमको गुस्सा तो नहीं आ रहा है डमरू? नहीं सर, कभी ही जस्ट एंटर्ड, आपके सामने आया, यस और नो बताइए. बैग लेकर मिलने आया और मैंने इसको बेचारा टाइम भी नहीं दिया है, ना कोई रिहर्सल करवाया आपको, ना उनको करवाया है. कहने का क्या मतलब है कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर मेहनत करे तो सीए पास हो सकता है. बिकॉज मैंने सुना है स्कूल में 97% यू कैन नॉट क्लियर आईपीसीसी. अनलकीली स्कूल में 91% यू कैन नॉट क्लियर आईपीसीसी. बुरा मत मानना, तुम्हारा क्लास 12 में कितना आया था? 88%. तो नॉर्मली तो इसको बिल्डिंग में सब डराए होंगे, 94% वाला इंसान अटका है. तुम्हारा 88 है, तुम 2 बार अटकोगे. कोई डरा भी दिया होगा, तुम हंसी मजाक से लॉ पढ़ते हो, तुम तो 4 बार अटकोगे. तो हंसी मजाक ऑफ लॉ इज जस्ट टू मेक यू इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट. जहां तक टेक्निकलिटीज की कमी है, हमने पहले भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था जब हमारे स्टार परफॉर्मेंस जो बुक के पीछे नाम लिखे हुए हैं, और आज भी नहीं करेंगे, बल्कि अब तो ज्यादा स्पून फीडिंग करना पड़ता है ड्यूरिंग द डिस्कशन. तो डमरू उर्फ पंकज, क्या टाइटल है? पंकज चौधरी इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स. इनकी मम्मी भी हमसे मिलके गई थी एंड शी वाज रियली वरीड अबाउट हिज फ्यूचर. एंड आई एम सो हैप्पी. रिजल्ट आने के पहले मैंने अपने घर पे अपने वाइफ से शेयर किया था कुछ रैंक होल्डर्स के नाम, शायद इनके आ जाएं. एंड मैंने डमरू का नाम शेयर किया था. सर क्यों, ये रैंक होल्डर लग रहा था आपको? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रैंक, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, बट मेरे को पता था ये मेहनती लड़का है. टेस्ट देता था. टेस्ट जब हम लोग थ्योरी पेपर्स का ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि उनके लिए सिर्फ अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम इज द ओनली एरिया. बट डमरू इज वन ऑफ देम, पंकज इज वन ऑफ देम, जो टेस्ट लिखा, मार्क्स भी कमी आया होगा 38-42 मेरे टेस्ट में, बट देन वी पॉलिश्ड, ही इंप्रूव्ड एंड टुडे आपके सामने एक सीए फाइनलिस्ट खड़ा है कॉन्फिडेंस के साथ, जिसने अपने मम्मी की आंखों में खुशी लाया और सारा घर का सपना साकार करेगा. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डमरू. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. बाकी लेट द वीडियो स्टॉप, पार्टी वार्टी का बाद में करेंगे. ऑल यंगस्टर्स, चाहे आप हमसे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, देर आर 35 चैप्टर्स इन लॉ, there are a lot of chapters in tax, it is not possible to mug up. Mugging up तो मैं भी बोलता हूं कि word to word technicalities आना चाहिए, but जब आप क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, there are problems because आपको irritation जरूर होगा, especially if you're covering huge syllabus in detail. अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो एक बार का टीचर बैड बुक्स में आ सकता है, अरे इतना कितना पढ़ा रहा है यार, इतना एक्स्ट्रा क्लास क्यों हो रहा है. बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे आज है 2 फरवरी, हमने 31 जनवरी को ही May 16 का बैच ओवर कर दिया था लॉ का. वी हैव टेकन 58 क्लासेस, अराउंड 60 समझ लीजिए, 60 क्लास हमने लिया था. वी स्टार्टेड इन जुलाई 2015, इसलिए क्लासेस जल्दी खत्म हो गई. एक बैकअप 8-8 बार चला था. एंड आई एम स्टिल रेडी, जो भी यूट्यूब देख रहा हो, जो बच्चे मिस किए हो, आई एम स्टिल रेडी टू प्ले द बैकअप्स अगेन. आइए, फायदा उठाइए, कोई पर्सनल हिच मत रखिए. सर मैं बीच में आता था इन आपके क्लास में, अब मैं आऊंगा तो शर्म आएगा. यू आर वेलकम, प्लीज कम, अटेंड द क्लास, ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. विल बी बैक अगेन बिकॉज मयंक कुमार सोनथलिया, एक और एक स्टूडेंट है, ऑल इंडिया 20th आया, ही इज ऑन द वे, वो आ रहा है, तो उनके संग भी आपको मिलवाऊंगा.
तो इसलिए मैंने चाहता था कि एक रैंक होल्डर भी मिले, और मुझे तो पता ही नहीं था ये भी एक आ गया जो हमारा एक सुपर हीरो है डमरू नाम का, तो ही इज ऑल्सो देयर. सो विल बी बैक टू यू अगेन इन सम टाइम. थैंक यू सो मच. या प्लीज सिट बैक. आप दो जन से मिले थे अभी, डमरू से आप मिले थे, वैष्णवी से मिले थे, एंड वी आर लकी कि मयंक इज ऑल्सो विद अस. सो फुल स्क्रीन टुवर्ड्स मी. So please welcome Mayank Kumar Sonthalia. He is rank number 20 in IPCC November 15. Let me confess something. Result कल आ रहा था, कल 1 February था, and इनका नंबर मेरे मोबाइल में था, बट किस नाम से मैंने सेव किया था मैं भूल चुका था. तो मैं अपने ऑफिस में जाके बोला कि यार एक छोटा सा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, जो May 15 में देने वाला था, बट ही गेव एग्जाम इन November 15. ही deferred his term, and उसको दिल्ली में भी एक अवार्ड मिला था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से. सीबीएसई में ही वाज वेस्ट बंगाल टॉपर 98%. 98%. तो आई वाज रियली वरिड, बिकॉज आजकल क्या होता है पता है, कई बार अच्छा मार्क्स आने के बाद अचानक अनलकीली, बिकॉज आई वुड से अनलकीली नहीं आता रैंक वापस में. आई वाज रियली वरिड. शाम को 8 बजे जब मैंने मैसेजेस ड्रॉप कर दिए सबको, मैंने इसका नाम भी नहीं लिखा, सॉरी फॉर दैट, एंड इट्स योर मिस्टेक, यू डिडंट इन्फॉर्म. हाँ, फाइनल्स में आएगा. तो ही डिड नॉट इन्फॉर्म बिकॉज ही वाज सो अपसेट विद रैंक 20, बिकॉज इवन आई बिलीव दैट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन कलकत्ता. ऐसा बोलना मैं कोई पार्शलिटी नहीं कर रहा हूं, बाकी जो आए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19, बट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स. तो मेरे को पता था कि इसका अच्छा रैंक आने का चांस है, बट अनफॉर्चुनेटली रैंक 20 पर मैं तो यही मानता हूं कि पहले 50 में सब बराबर है. जिसका सितारा थोड़ा ज्यादा चमक गया इस बार वो फर्स्ट आ गया. इसका फाइनल में चमकेगा. आई एम 100% ओवर कॉन्फिडेंट. तो मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि अगर आप हार्ड वर्क करें तो आ सकता है. एंड ऑफ कोर्स एक राइडर अटैच कर देता हूं आजकल के चेकिंग पैटर्न पे, विच ही विल ऑल्सो एडमिट बीइंग सच अ सक्सेसफुल पर्सन टुडे, कि एक रैंक भी आ गया है. बट ही इज वेरी ब्रॉड माइंडेड कि रैंक आना तो अच्छा बात है ही, बट फुल 360 डिग्री नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर जेन्युइनली बता रहा हूं, किताब छू के बोल रहा हूं, अगर इसका रैंक नहीं भी आता ना, मैं इसका नाम यही बोलता, मयंक रैंक होल्डर, मयंक सोंथलिया रैंक होल्डर. डमरू का केस याद है आपको, मैंने भी मिलवाया था. एक एवरेज स्टूडेंट जिसको मैं बोलूंगा हीरो ऑफ आवर सेंटर. आपको लग रहा होगा ऐसा क्या हीरोगिरी दिखाई दिया, आप नहीं समझेंगे. जब एक एवरेज स्टूडेंट मेहनत करके आगे जाता है ना, तो वो असली हीरो होता है, और ये तो अब हीरो साबित हो ही गया है. तो बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू हिम सो दैट ही कैन इंटरेक्ट एंड गाइड द यंगस्टर्स अबाउट हिज फीलिंग्स, ओके, इग्नोरिंग मेरे प्रेज को मत करिएगा. मैंने तीनों लोगों को बोला है, आप बाकी ओवरऑल इंटरेक्शन बच्चों से करिए, दैट व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड फोकस. ओके, माइक टू हिम, टुवर्ड्स हिम, फुल स्क्रीन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो you are giving your IPCC exams in May, right? Yeah, some of them are giving in May 16, some of them are giving in November 16 because people are planning to defer. So you might be tensed about the curriculum and the course of the CA. Let me tell you कि syllabus बहुत vast है. आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आप चौथे पांचवें दिन उसको भूलेंगे भी. ये मत सोचिएगा कि आप एबनॉर्मल है, क्योंकि मेरे साथ हुआ था. मैं सोचता था कि मेरा दिमाग कमजोर है या मैं एबनॉर्मल हूँ. बिकॉज टैक्स में क्या होता था, इनकम टैक्स आई रेड वन डे, उसके बाद एक वीक बाद में से वो प्रोविजन याद ही नहीं आता था, तो लगता था 2 घंटा बर्बाद हो गया मेरा. ऐसा नहीं है. सीए का करिकुलम इतना वास्ट है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा. और एक बात और, 80% हार्डवर्क है, 20% लक है. और रैंक आने से या आईपीसीसी पास होने से ये प्रूव नहीं होता कि जो पास नहीं हुए या जो आपसे कम मार्क्स लाए दे आर नॉट इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल. इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल एंड नॉट एट ऑल डिजायरेबल एंड नॉट एट ऑल फिजिबल. ये बात आप याद रखिए. और जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपने में कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को लोग बहुत लाइटली लेते हैं. दे कीप इट फॉर एग्जाम के पहले 1-2 महीने के लिए. सीए वाले, जब सीएस वाले इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, आप लोग लाइटली मत लीजिएगा सीएस वाले लोग, बिकॉज सीएस में इफ यू आर नॉट गुड इन लॉ तो आप अलग ही टाइप के कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे. सीए में इट इज ऑफ कोर्स टेकन एज लाइटली. एंड मैं भी बोलता हूँ ऑफ कोर्स द कोर पेपर्स आर अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स. आई एम ब्रॉड माइंडेड. ऐसा नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं एक ध्वज लेकर बोलूं दिन भर थ्योरी पेपर्स पढ़ो. बट डिग्री तो चाहिए अब सीए का, तो उसके लिए थ्योरी सब्जेक्ट 300 मार्क्स का आता है और टैक्स भी आधा थ्योरी लगता है मेरे को. तो आप थ्योरी को प्लीज लाइटली मत लीजिए. आईटीएसएम मेरे को सर का एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी लगा था कि व्हेन आई वाज सपोज टू गिव इन May 15, सर स्टार्टेड आवर आईटीएसएम क्लासेस इन December व्हेन आवर कॉलेज वाज ऑफ, एंड वो बहुत हेल्प किया. तो आप थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने से आपका एफर्ट 70% कम हो जाएगा.
एक थ्योरी सब्जेक्ट का गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, और थ्योरी आप ऐसे घर में पढ़ेंगे तो आई डोंट थिंक वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो इसीलिए वो मजाक के साथ, मैं सर का तारीफ नहीं कर रहा बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड इट। मैं 3 पेपर दिया, तीनों में 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स, तो एंड 3 थ्योरी सब्जेक्ट मैं इसी छत के नीचे बैठता था उधर, आज भी याद है, इसी के नीचे। दिस साइड ना तुम लोग का एक पूरा ग्रुप था, वहीं पर बैठते थे। समाधि बना लेते हैं लोग एक बार आने के बाद ना, मुझे यहीं पर स्थापना करना है। तो आप लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स सर पढ़ा दे, आप सिर्फ 15 to 20 मिनट्स को रिवाइज कर लेंगे तो वो ड्रिल हो जाएगा दिमाग में। ऐसा बात नहीं है थ्योरी सब्जेक्ट बोलते हैं रट्टाबाजी है, नहीं, मैं नहीं मानता। लॉ में कंपनी लॉ, आज आर्टिकलशिप में बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ रिजेक्ट हुए बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गिव करेक्ट सेक्शन नंबर्स। लाइक अभी ओरिएंटेशन में भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट 2013, ये कोई सेक्शन नंबर तो कोट नहीं करेगा। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें कोई एक सेक्शन नंबर नहीं है। ओवरऑल जो अपने लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारा चीज हुआ है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिकॉज ऑफ सत्यम एंड सहारा फ्रॉड एंड लॉट ऑफ थिंग्स। बोलो आगे प्लीज, आई सॉरी इंटरप्टेड। तो मैंने ये सर ने पहले क्लास में कंपनीज का डेफिनेशन बताया था, तो उसमें एक पॉइंट था क्लास सूट एक्शन फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, एंड दैट पर्टिकुलर गाय हु वाज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वाज अ काउंसिल मेंबर, ही अप्रेज्ड मी, ही टोल्ड ये सब पॉइंट्स बुक में नहीं रहता है, ओनली अ क्वालिफाइड पीपल हु अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट कैन टेल। तो आपको थ्योरी सब्जेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए पास होना है। मेरे थ्योरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए लेकिन डिजायरेबल नहीं है वो, मतलब मेरे को लगता है कि मेरा वो स्टैंडर्ड नहीं था लेकिन वो आया और मार्कशीट भी मेरे को वही मिलेगा, तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। तो एट द एंड ऑफ द डे 5 साल बाद 2 चीज मैटर रखता है, बैंक बैलेंस एंड द नॉलेज, नथिंग एल्स। आपका मार्क्स, आपका रैंक एक समय के लिए वाह वाह है, लेकिन फिर आपको नॉलेज चाहिए। और कंपनीज एक्ट, आई थिंक कंपनीज एक्ट एंड द जीएसटी, इफ एनीबडी कैन मास्टर ओवर दिस 2 टॉपिक्स देन उसके लिए फ्यूचर में बहुत स्कोप है, बहुत ग्रोथ है। सो यू शुड गिव। इवन आईपीसीसी फ्रेंड्स, इनको बताओ आईपीसी फ्रेंड्स के लिए, मतलब कंपनीज एक्ट का क्लास मिस करना मतलब सच अ बेवकूफी कि ये आज तो इजी है, अपने आप कर लेंगे, आज तो हंसी मजाक होगा, आज अपने आप कर लेंगे। बीच में इफ यू स्टार्ट ड्रॉपिंग द क्लास देन दैट फ्लो विल नेवर कम। मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे तो फीस मिल गया, आई विल बी हैप्पी, आपको लग रहा होगा, नॉट एट ऑल। टीचिंग इज नाउ बिकम अ पैशन आफ्टर 16-17 years, उम्र 37 के आसपास, आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 21। तो इसलिए जेन्युइनली बोल रहा हूं दैट डोंट मिस। एंड जहां तक हम लोग का सवाल है, तुम लोग तो चलो आप अभी पढ़े हो, आज से 15 साल पहले जो हम लोग पढ़ाते थे और जो अब पढ़ाते हैं, इट हैज बिकम 7 times। आप खराब नहीं हुए 7 times, आप बिजी हो गए, आपके लिए फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप दिन भर इन्वॉल्व है, और हम लोग को आपको क्लास में इन्वॉल्व करने के लिए वी हैव टू डू एक्स्ट्रा क्लासेस। तब बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास क्यों है? एक्स्ट्रा क्लास आर फॉर योर बेनिफिट्स। मैंने बताया था कि जैसे ये May 16 की एग्जाम है, वी फिनिश्ड आवर कोर्स ऑन 31 January, लॉ वाला। अब रिविजन होगा, टेस्ट होगा, कम लोग आएंगे, ज्यादातर लोग आएंगे नहीं। डोंट यू फील दैट पीपल शुड सिट फॉर द टेस्ट व्हेन वी कॉल? मतलब कौन सा मारा पीटी है? मतलब तुमको क्या लगता है, अगर आना बैठना चाहिए क्या नहीं बैठना चाहिए? आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस, कि एक बात बताता हूँ। जब हमारा अकाउंट्स ग्रुप 1 का एग्जाम था आईपीसीसी में, तो एक लड़का था, ही वाज माय फ्रेंड, एंड उसको पेपर नहीं पता था कि क्या पैटर्न है। और एक्चुअली आपको बता दें, एक ऑप्शन होता है सीए के पेपर्स में, आप छोड़ सकते हैं। और वो इतना टेंस था, कभी पेपर सॉल्व नहीं किया, कभी टेस्ट में नहीं बैठा, किसी के टेस्ट में नहीं बैठा वो, और उसको नहीं पता था कि एक ऑप्शन छोड़ना होता है। इसके वजह से वो क्या किया, पूरा अटेम्प्ट करना कोशिश किया। इसके वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी किया, उसका आंसर नहीं आया, आधा में छोड़ दिया, क्योंकि उसको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, क्योंकि उसको नहीं पता था ये बात। और लास्ट में वो बेटर था, लेकिन उसका मार्क्स कम आया बिकॉज ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। पढ़ाई आप लोग करते हैं, बट मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स आप खुद से भी घर में दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में सर आई थिंक 2 या 3 मॉक टेस्ट लेते हैं, आई सेट फॉर दैट, चेकिंग भी अच्छा होता है। तो आप मॉक टेस्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन भी कीजिए, और ये बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई 2 मिनट कम कर लीजिए, लेकिन टेस्ट में जरूर बैठिए, बिकॉज इट विल। और अगर नहीं भी प्रिपेयर्ड है, उस 4 घंटा में जो पढ़ के आएगा ना बस में आते वक्त या सुबह, कुछ आगे ही बढ़ेंगे आप। तो ये जंग से बीच में भाग जाने का तरीका होता है। अभी मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा, मैं अभी सिर्फ कॉस्टिंग और अकाउंट्स और टैक्स के एग्जाम में बैठूंगा। तो जेन्युइनली बता रहे हैं, इन लोग को बुलाने का उद्देश्य क्या था कि एक नॉर्मली समाज का एक ट्रेंड है कि जब ये कुछ बोलेंगे तो अब रामबाण लगेगा। ऑफ कोर्स पहले भी बोलता तो मुझे तो वही लगता, बट बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन के लिए अब इन लोग एक मसीहा हैं। तो अगर इनसे कुछ अगर पॉजिटिव वाइब स्प्रेड हो सके तो व्हाई नॉट। कोई बोल रहा होगा सर उन लोग को बुलाइए जिनका नहीं हुआ। वी डोंट वांट टू इरिटेट समवन, जिसका भी नहीं हुआ या मार्क्स कम आए उनको तो मैं बुला के पब्लिकली नहीं करवा सकता हूं।
बहुत लोगों के नहीं हुए होंगे, रिजल्ट्स का परसेंटेज पता ही है. आई कांट से दैट 100% ऑफ अमित बछावत ट्रेनिंग फोरम स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड. हम ये बोल ही नहीं सकते. They have got rank, we are enjoying that, we are spreading some messages, but that is not that others जिनका नाम मैं मैसेज में टाइप नहीं कर पाया, कैरेक्टर की लिमिट होती है, they are not heroes, they are also super heroes in our eyes. Okay? And मैं genuinely बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि इसका रैंक है, और इसका अगर रैंक नहीं भी आता मैं इसको याद रखता, बिकॉज मैंने तो अपने स्टाफ को पहले ही बोल दिया, अरे वो लड़का कहाँ है जिसको मिनिस्ट्री से अवार्ड मिला था, उसका कोई खबर नहीं आया. एंड आई एम सो हैप्पी कि जिस पर मैंने बोलते हैं ना, जिस घोड़े पर मैंने दाव लगाया था, ही हैज एक्चुअली won the match. Thank you Mayank so much. All the best in future. Yeah, please बैठ जाइएगा because there's someone else to motivate us and he's Nitin, IPCC November 15 rank 33, St. Xavier's evening में पढ़ता है. तो प्लीज 2 मिनट और बैठ जाइए, उनसे भी कुछ बात करते हैं. या प्लीज नितिन, फ्रेंड्स को बोलो, और अच्छा ही बोलना, मतलब कि पॉजिटिव नोट पर, क्योंकि बहुत रिजल्ट खराब हुआ है, आपको पता ही होगा. द रिजल्ट हैज बीन वेरी बैड. आप एक डीके जाएंगे वहां पर, द रिजल्ट हैज बीन वेरी बैड, 4% समथिंग. तो इस एनवायरनमेंट में यंगस्टर्स आर वेरी टेंस्ड, क्या इस बार एग्जाम दें या बहुत दिन बाद एग्जाम दें. फुल स्क्रीन टुवर्ड्स अस, तो दे आर वेरी टेंस्ड. तो आप उनसे बात करिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, सातों पेपर्स बैलेंस्ड कैसे होना चाहिए, व्हाट इज योर पर्सनल व्यू. और आपने तो खुद एग्जाम दिया है और अभी तो प्रसाद भी मिला है भगवान की दया से, तो प्लीज इंटरेक्ट विद देम फॉर 2 minutes. Hello everyone, as you know I am Nitin Kulshresht. To my good luck I secured a rank this year. See what I'll say कि CA का सही में curriculum बहुत vast है, तो you cannot take anything lightly. You have to see, अगर curriculum vast है तो cover करने के लिए सबसे important है कि आप सारे classes कीजिए, चाहे वो theory के classes हो चाहे वो practical के classes हो, आपको classes सारे attend करने हैं. Because especially for theory, क्योंकि अगर आप जो theory class में attend करते हो, अगर वो उसके बाद आप जाकर घर पे पढ़ते हैं. अब ये theory बोल रहा है क्योंकि हमारे सेंटर पर है, मतलब you have to do all the subjects in a balanced manner. सी फॉर थ्योरी आपको क्लासेस अटेंड करने इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप वो घर पे खुद से पढ़ोगे तो जो चीज़ आप वहाँ 1 घंटे में पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे आके कवर कर लोगे तो आप उसको 15 मिनट्स में ही कर सकते हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एग्जाम के पहले 1 दिन मिलता है वो पढ़ने पूरा कवर करने के लिए. तो अगर आप वो खुद से कर रहे हो तो आप वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे. बट अगर आप सर के नोट से कर रहे हो, अगर आपने पूरा क्लास सुना है और आप उसको बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज द की. क्योंकि अगर आप पूरा रिवाइज ही नहीं करोगे तो फिर पूरा मगअप करने का कोई फायदा ही नहीं है. एंड द अदर पॉइंट इज कि आप थ्योरी को ये मत समझो कि आपको मगअप करना है, कि थ्योरी सिर्फ मगअप करने के लिए नहीं होता है. हाँ, उसमें टेक्निकल पॉइंट्स है जो सर भी बोलते हैं, वो सब जो सर अंडरलाइन कराते हैं कि यूज दिस वर्ड्स, यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको वो वर्ड्स यूज करना है, बट आपको एकदम मगअप नहीं करना है. आप वो पॉइंट्स याद रखो एंड उसके साथ सर जो एग्जाम्पल्स देते हैं उसको माइंड में रखो. यू डोंट हैव टू राइट. सर बहुत फनी एग्जांपल्स देते हैं जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, उसके चलते हम लोग क्लास में इंटरेक्ट करते हैं. बट आपको फनी एग्जांपल्स जाके वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, आपको रिलेट करना है कि सर ने उसे किस पॉइंट में, लॉ के किस टेक्निकल पॉइंट से रिलेट किया था. आपको उस टेक्निकल पॉइंट से रिलेट करके आपको वो लिखना है. कमिंग टू ऑडिट ITSM, ये बहुत टफ माना जाता है. लोग सबसे ज्यादा फेल करते हैं तो ऑडिट ITSM में ही फेल करते हैं. बट मैं आपको एक बात बोलूंगा, ITSM में स्पेशली आप सर का बुक यूज करो. सर के बुक में बहुत कॉन्साइज में दिया, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है. अगर आप वो याद कर ले तो ठीक है, आप एक काम कर सकते हो कि आप इंस्टीट्यूट का मैथ पढ़ लो, एक बार रीडिंग कर लो उसको. मगर आप लास्ट में एक्चुअली मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था. मैंने जब किया था, मैं आई स्टार्टेड विद ITSM का थ्योरी वाला मैथ का बुक से. बट मेरे को 1 आवर में ही लग गया था कि यार मैं मैथ से रिवाइज करूंगा तो आई कैन नॉट रिवाइज इट कंप्लीटली. तो मैंने क्या किया, फिर मैंने सर का बुक उठाया, मैंने सर के बुक से पूरा पढ़ा, क्योंकि जब कंप्लीट करोगे तभी तो आप जाके पेपर में लिखोगे. कमिंग टू प्रैक्टिकल पेपर्स, द ओनली की इज प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही लिखोगे. स्पेशली फॉर टैक्स, क्योंकि टैक्स में आप सिर्फ प्रोविजंस याद करके नहीं जा सकते हो. वहां पे आपको प्रोविजंस आस्क ही नहीं करते हैं, दे गिव यू क्वेश्चंस जो सारे प्रोविजन से रिलेटेड होता है. अगर आप पूरा का प्रैक्टिस नहीं करोगे आप वहां पे जाके सॉल्व ही नहीं करोगे. एंड आई एम टेलिंग यू, इस बार का टैक्स पेपर वाज द टफेस्ट पेपर इन ग्रुप 1. बहुत लोग का टैक्स में ही लटका है. तो आपको फोकस करना है. वो सब सब्जेक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप उस पर फोकस नहीं करोगे तो आप वहां पे लिख नहीं पाओगे. आई टेल यू अ स्मॉल थिंग कि मैंने टैक्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, तो आई फेस्ड अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन एग्जाम. व्हेन आई वाज राइटिंग द एग्जाम, आफ्टर 1 आवर आई फेल्ट ब्लैंक फॉर 2-3 मिनट्स. आई कुडंट कॉन्सेंट्रेट मेरे पेपर में क्या था. एंड एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि मैंने बाकी सारे प्रैक्टिकल पेपर्स में मेहनत किया था, मैंने टैक्स में उतना नहीं किया था. मैंने बाकी सबका मॉक टेस्ट दिया था, मैंने टैक्स का नहीं दिया था. एंड वो मेरे को वहां पे हर्ट कर रहा था. मैं जानता हूँ ठीक है मुझे रैंक 33 आया है, बट अगर मैं टैक्स पेपर में उतना ही मेहनत करता जितना मैंने अकाउंट्स वगैरह में किया था तो मेरे को 33 नहीं, मेरे को 3 भी आ सकता था. तो आपको वो चीज वहां पे फोकस करना है. एंड वन मोर थिंग इज कि जब आप पढ़ते हो तो प्लीज स्टॉप यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक.
ऐसा नहीं है कि आपको व्हाट्सएप फेसबुक यूज ही नहीं करना, आप फ्री टाइम में करो, बट जब आप अगर आप 2 घंटे के लिए भी पढ़ रहे हो तो उस 2 घंटे के लिए प्लीज डोंट यूज द फोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि होता क्या है कि आपको लग रहा है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो और साथ साथ फोन यूज करो, फोन से आपका नींद टूटा रहेगा, बट ऐसा नहीं है। फिर होता क्या है कि आपका फोकस पेपर पे नहीं, आपका फोकस फोन पे रहता है। तो जब आप 2 घंटा पढ़ के उठोगे आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ फोन पे था, तो आप वो चीज वहां अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो यू हैव टू स्टडी इट सीरियसली, बिकॉज ये इतने इजी एग्जाम्स नहीं है कि तो आप कैसे भी क्रैक कर लोगे। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू गिव इट ऑल। क्योंकि सी आई वॉज ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट, तो मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, बट एक्चुअली मैंने मेहनत किया, मैं जाता था, मैं अकेले पढ़ता था। आई यूज टू स्टडी इन Xavier's library, and for the Xavier students I'm telling you have a fantastic library. Go there, study even for 2 hours, but go and study there, you will feel good. Also use the shortcuts which sir give. शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहां पे लंबे लंबे पॉइंट्स याद करके नहीं जा सकते हो, बिकॉज स्पेशली फॉर एथिक्स कम्युनिकेशन में आपको बोल रहा हूँ कि एथिक्स कम्युनिकेशन में पॉइंट्स इतने सिमिलर हैं कि आप कंफ्यूज जाओगे। अगर आप हल्का से ही पॉइंट से डिविएट करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यू हैव टू राइट एकदम पॉइंट, तो यू हैव टू लाइक एकदम शॉर्टकट याद करना कि हाँ, और एग्जाम के पहले शॉर्टकट पक्का रिवाइज करो, आपको शॉर्टकट याद रहेगा, आप आएगा खुद से लिख दो एंड यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम्स। एनी क्वेरीज? इतना ज्ञान सुनने के बाद डोंट कंसिडर इट एज अ ज्ञान, मतलब अभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, एंड आई एम श्योर इसने कोई लिस्ट कोई स्पीच रेडी नहीं किया होगा ये बोलने के लिए। जस्ट ही मस्ट हैव सम आउटलाइंस कि मेरे को बच्चों से या फ्रेंड से ये बात करना है। एंड एक बात वापस बोलता हूं, मैंने पहले जो 3 लोग आए थे उनके सामने बोला था that अगर क्लास मिस भी हो जाता है, बैकअप मांगिए, पर्सनली मांगिए, हमारे ऑफिस में बैकअप के लिए कभी कोई मना नहीं करता है। ये आलस में रह जाना कि अब तो मेरा 7-8 क्लास मिस हो ही गया, चलो बाकी घर में पढ़ लूंगा, या मेरे किसी एक रैंक होल्डर ने बोला है कि मैं कुछ दिन तो जाऊंगा पर बाकी घर में कर लूंगा। जब फीस दिया हुआ ही है और कुछ बेनिफिट मिलना ही मिलना है, तो यू शुड डू 100% ऑफ द क्लासेस, ताकि शायद और बेटर रैंक आ जाएगा। सो रिमेंबर, बी रेगुलर, बी एक्टिव, एंड जो बच्चे नहीं भी पढ़े हो हमसे और यूट्यूब में क्लास कर रहे हो, एक बार नए वाले बुक्स को देखिएगा। जब इन लोग पढ़ते थे, मैंने पहले भी बताया था, बुक्स वर ओके गुड, बट अभी हमने प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस भी बुक्स में डाल दिए। हैव यू सीन बाय चांस जेन्युइनली देखा येलो कलर का? ओके, वी हैव रेडिकली चेंज एंड इम्प्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा दैट आई एम अ परफेक्शनिस्ट, या मैं ये नहीं बोलूंगा दैट अब जो मैं बोल दिया वही सब कुछ होगा। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, गलती मुझसे भी होगी, आपसे भी हो सकती है, तो वी हैव टू ऑलवेज इम्प्रूव। So all the best for everyone. Thanks Nitin once again.